ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? फर्स्ट we learn about object oriented programming, oops, and after that we'll discuss lots of, there are so many number of oops features. We'll discuss one by one each and every feature in detail with practical approach. Okay, features of oops. oops का आपने कभी अभी तक नाम पढ़ा है, सुना है कुछ? oops क्या चीज है? भाई, anyone have an idea about oops? Yes, sir. Oriented object programming language. क्या है ये? सर उससे एक वो था सर, क्या बोलते हैं, पेड़ था उसका नारियल। oops is the name of programming strategy. oops एक क्या प्रिंसिपल है? oops is the principle, programming principle, programming principle क्या है? प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल है, क्या है? एक सिद्धांत है वो, ठीक है ना? प्रोग्राम करने का, कोड लिखने का एक क्या है? प्रिंसिपल है वो, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल। In other words, you can understand oops is the methodology. oops क्या है? oops is the methodology, अप्रोच है, टेक्निक है, तो मेथोडोलॉजी, अप्रोच, टेक्निक, राइट? उस तरीका है एक, इस तरीके के अंदर हम कुछ रूल्स आएंगे, रूल पे बेस्ड हम प्रोग्रामिंग करेंगे, राइट? Oops is the methodology, approach and technique which comes from the real life, which came from, which based on real life, जितने भी फीचर हैं आपको रियल, हर फीचर्स रियल लाइफ से उठाया गया है। जितने भी oops के फीचर पढ़ोगे आप, तो सारे फीचर्स कहाँ से लिए गए हैं? रियल लाइफ से। हर एक फीचर रियल लाइफ से रिलेटेड रहेगा, दैट रियल लाइफ फीचर वी आर implementing in the programming as well, right? oops is what? oops is the name of principle or programming principle. oops is the what? Methodology, approach, technique which based on real life, using which develop computer related application or software, or computer related application code, software by using which we develop इन फीचर्स की हेल्प से क्या करते हैं? we develop computer related application code software by using class and object. Clear? Class and object is play very important role to understand all the features in detail. तो सबसे फंडामेंटल फीचर, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। विदाउट क्लास कोई जावा का प्रोग्राम नहीं बनेगा। जावा में कोई भी प्रोग्राम विदाउट क्लास को, मतलब क्लास ही मत समझना, क्लास का मतलब होता है क्लास या इंटरफेस या इनम। क्लास इज स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो क्लास को सिर्फ क्लास मत समझो, क्लास इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर जावा में तीन है, क्लास है, इंटरफेस है, या नाम, तीनों का बाइट कोड बनता है। तीनों के बगैर, इन तीनों में से किसी को भी यूज नहीं करोगे, वी कैन डेवलप एनी जावा कोड। ओके, ऑलवेज अंडरस्टैंड, क्लास मींस क्लास is an interface and enum. So without using these three things, we can't develop any Java code, right? So basically, OOPS is what? A principle, programming principle, which have certain rules and which have many features. Based on that feature, we develop computer related application code software by using class and object, right? देखो सब बुक्स में अपनी अलग अलग डेफिनेशन होगी, ये मेरी अपनी डेफिनेशन है। सो oops is what? Principle. What are the principle in oops? Class and object. This is one more principle. Okay,
Principle means features. One by one, we will discuss each and every features in detail. Okay. First, you understand features of OOPS. OOPS समझ में आ गया? OOPS क्या चीज है? OOPS एक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी का नाम है, प्रोग्रामिंग करने का तरीके का नाम है। उसमें वो तरीका कहाँ से लाया गया है? वो रियल लाइफ से लिया गया है। और अभी काफी सारे फीचर्स आएंगे, विल डिस्कस वन बाय वन along with the real life. ठीक है ना? तो I will discuss each and every one features. So there are so many features. Some ये मेरा अपना मानना है, इतने फीचर है, कुछ लोग कहते हैं कम है, कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा है, बहरहाल कोई बात नहीं। तो पहला फीचर्स है क्लास एंड ऑब्जेक्ट. फर्स्ट फीचर इज व्हाट? क्लास एंड ऑब्जेक्ट. We'll discuss each and every point about this feature. What is data hiding? Data hiding is also one more important feature. And abstraction. You know about abstraction? Anyone have an idea about abstraction? Okay, no issue, we'll discuss later. Encapsulation is also one more important features of OOPS. Tightly encapsulation class. हाँ सर एब्स्ट्रैक्शन में जो इनर डिटेल्स होती हैं वो शो नहीं होती हैं यूजर्स को। हाँ, दुनिया की हर चीज इस एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करती है. मींस हाइडिंग दी अनवांटेड थिंग बाय रिवीलिंग रिक्वायर्ड थिंग्स, और रिक्वायर्ड थिंग्स आर विजिबल. जो गैर जरूरत चीजें होती हैं वो छुपा दिया जाता है, और जो जरूरत वाली काम की चीज है उसको दिखाया जाता है. फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लो मतलब सपोज करो आपके घर में सीलिंग फैन होगा, राइट? तो सीलिंग फैन के इंटरनल मैकेनिज्म जो है, कैसे वायरिंग इंटरनली इंटरकनेक्टेड है, कैसे ये फैन घूम रहा है, राइट? तो ये चीज छुपा दी गई है. बट रिक्वायर्ड थिंग्स आर विजिबल मींस पंखा कैसे घूम रहा है, ये चीज आपको दिख रही है, राइट? कोई भी ह्यूमन आइज का इंटरनल मैकेनिज्म, आदमी की आंख जो है कैसे देखने का काम कर रही है, दैट थिंग्स आर हिडन. बट उसका काम क्या है? देखने का. तो वो चीज पता चल रही है बाहर से. तुम कोई भी दुनिया की कोई सी भी चीज लो, वॉल वॉच ले लो, दीवार घड़ी, राइट? दीवार घड़ी जो है इंटरनली उसकी सुई कैसे काम कर रही है, दैट थिंग्स आर हिडन, राइट? इन द सेम वे दिस फीचर्स आल्सो implemented in Java as well. Java में कैसे पता करोगे भाई? system.out.println लिखा था, इसके पीछे कैसे प्रिंटिंग का काम कर रहा था, ये चीज छुपाई गई है ना, दिख रही है तुमको? नहीं. Yes, sir. system.out.println आपने कैसे देख लिया भैया? इसने जो है प्रिंटिंग का काम कर दिया, बस ये पता चल गया हमको. मैंने पोस्टमार्टम किया था system.out.println का, आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप ना. ये फीचर दोबारा से रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर हो गया. नंबर 2 पे एनकैप्सुलेशन, नंबर 3 पे एब्स्ट्रैक्शन, नंबर 4 पे एनकैप्सुलेशन, नंबर 5 पे टाइटली एनकैप्सुलेशन, 6 पे कंपोजिशन, 7 पे इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस काफी बड़ा टॉपिक है, 1-2 हफ्ते का टॉपिक है, क्योंकि काफी सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, राइट? And then after polymorphism, this is also very important concept. पॉलीमॉर्फिज्म के बाद 9 नंबर पे स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, एंड देन कंस्ट्रक्टर. So also very lengthy topic. Constructor is also very lengthy topic. And life cycle of object. ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल क्या है ना. नेक्स्ट इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो, कोहेजन, कपलिंग. These are the things I will cover as part of object oriented feature. First I need to observe the syllabus of unit 2. सिलेबस देखा है आप लोगों ने? नहीं, यूनिट 2 का? नो सर. ओके.
यूनिट 2 के सिलेबस पे नजर मार लेते हैं एक बार हल्का सा, फिर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में ओवरऑल क्या है, डिफाइनिंग क्लास, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, एडिंग वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, मेथड को एक्सेस कैसे करते हैं। वैसे अगर देखोगे तो ये मैंने चीजें बता दी है, लेकिन अब हम लोग इन चीजों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। क्रिएटिंग में ऑब्जेक्ट, accessing class member, constructor, method overloading, static member, nesting of the methods, inheritance में extending class, overriding, polymorphism, ये तमाम चीजें will discuss as part of unit 2, ठीक है ना। चलो तो मतलब ऑलमोस्ट चीजें जो यहाँ लिखी हुई हैं वो सब इन फीचर्स में कवर हो रही हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है यहाँ पर, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फाइनलाइज मेथड यहाँ कवर होगा, फाइनलाइज मेथड, विजिबिलिटी कंट्रोल। Visibility control means public, private, protected, these kind of things. Visibility control. Final classes. बस इतना काफी। तो ये एक तरीके से आप समझो कि आपका यूनिट 2 का सिलेबस भी लिखा हुआ है और ये सारे फीचर्स भी हैं जो कि उसके अंडर आते हैं, है ना। तो वन बाय वन आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट। तो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस को थोड़ा सा मैं अलग करता हूँ। सीक्वेंस को मैं ऐसे बनाता हूँ, ये 5 है, ये 4 है, 3 है, ठीक है ना। व्हाट इज डेटा हाइडिंग? व्हाट इज डेटा हाइडिंग? सिंपली कुछ इसमें कमाल का भी प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहा हूँ। बताओ डेटा हाइडिंग से आप क्या समझते हो? What is data hiding? Can you please tell me anyone? And if you have an idea about this? Data hiding, very simple. Data hiding is सर nothing but जो डेटा यूजर जो डेटा जहाँ पे रखा हुआ है मेन फिजिकली, वो यूजर से हाइड करना है सर आपको। data hiding is the process in which we hide the data from to the all other users. सिर्फ एक यूजर के अलावा किसी दूसरे यूजर्स के लिए, किसी और जितने भी यूजर हैं सबके लिए क्या कर दिया जाए, हाइड कर दिया जाए। Data hiding was just kind of one process, is a process in which to hide a data to the all other users, so that which things will improve, security will be improved, right? So क्या होगा उससे, सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी। कैसी सिक्योरिटी? भाई मेरा डेटा है, अब मैंने डेटा अपना सेट कर दिया, उसके बाद जो है nobody can get my data, right? Suppose in programming how this will happen, और हम इसको how can we do this, try to observe। ये ऐसा क्यों करते हैं? फॉर सिक्योरिटी रीजन, फॉर द सिक्योरिटी रीजन वी नीड टू इम्प्लीमेंट what data hiding concept. Try to observe, very simple। hiding, data hiding is hiding the data। ठीक है भाई, तो हाइडिंग मींस सिंपली हाइडिंग द डेटा सो दैट अदर पर्सन और अदर डेवलपर कैन नॉट एक्सेस आवर डायरेक्ट डेटा डायरेक्टली। अगर आपकी क्लास सपोज, अब प्रोग्रामेटिकली हम समझते हैं इस चीज को,
प्रोग्रामेटिकली क्या है, क्लास के अंदर I declared this is our class, suppose a class. Inside this class, if any data member means any variable like int, like string username un. सपोज आपने यूजर नेम में कुछ वैल्यूज प्लेस कर दी, ठीक है ना, कहा हमने IUABC, राइट, ये आपका सपोज यूजर नेम है. सो इफ यू वांट टू सेट दिस यूजर नेम, सो इफ वैल्यू ऑफ क्लास ए, मतलब क्लास ए के जो स्टेट है उस स्टेट को nobody can access. कब एक्सेस नहीं हो पाएगा? if that variable of a class A is declared as a private. So means what? This is what? data hiding. data hiding किसके लिए हुई? data hiding जितनी भी क्लासेस हैं A के अलावा, apart from A, all the classes can't be access this variable. That is what? data hiding. राइट, क्यों करते डेटा हाइडिंग? तो nobody can access my data, right? अब in term of programming, so that other developer या other person cannot access our data directly. जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक वो मेरे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, राइट? फॉर सम सिक्योरिटी पर्सन, हाउ टू अचीव? बाय सिंपली राइटिंग प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर. Okay, so we can achieve data hiding. Try to observe. दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है our data directly, but indirectly it is possible. अगर मैं चाहता हूं कि मुझे किसी को डेटा दिखाना है तो वो एक अलग चीज है, वो भी दिखा सकते हैं हम लोग. ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दोगे, प्राइवेट नहीं लगाओगे तो हर एक क्लास, मतलब जो भी क्लासेस हैं वो इस UN को एक्सेस कर सकती है. जैसे सपोज क्लास बी है, क्लास बी के अंदर आप चाहोगे कि ये भाई एक्सेस हो जाए तो एक्सेस हो जाएगा, प्राइवेट नहीं रहेगा तो एक्सेस हो जाएगा, राइट? अगर ये प्राइवेट नहीं है तो ये वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक? So non-static. नॉन स्टैटिक है, तो इस ए क्लास का ऑब्जेक्ट हम बी क्लास में बना देंगे और उस नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूएन को एक्सेस कर लेंगे और यूजर नेम पता चल जाएगा, राइट? इस तरीके से पासवर्ड वाली फील्ड है. तो डेटा हाइडिंग का पर्पस समझ में आया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा हाइडिंग? यस सर. डेटा को हाइड करना. डेटा को क्या करना? हाइड. क्यों करना? फॉर सम सिक्योरिटी रीजन. देखो, अब आप सोच रहे हो कि यही क्लास ए क्लास हम बना रहे हैं, ए बी क्लास भी हम बना रहे हैं, तो रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है. रियल टाइम में क्या होता है, जब आप डेवलपमेंट में जाओगे तो एक क्लास कोई और बना रहा होगा, दूसरी क्लास कोई और बना रहा होगा. बात समझ रहे हैं मेरी बात? अभी आपको क्या लगेगा प्रोग्राम में कि दोनों ही क्लासेस मैं बना रहा हूँ, तो फिर क्या मतलब है डेटा हाइडिंग का? डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं डेटा हाइडिंग का. डेटा हाइडिंग का मतलब है जब आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, एक क्लास किसी अदर पर्सन ने बनाई और वो अदर पर्सन चाहता है कि मेरी क्लास के मेंबर्स को कोई एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि ये जो वैल्यूज फिक्स नहीं रहेंगी, ये वैल्यूज बाद में इनपुट कराई जाती है, राइट? ये वैल्यूज हमेशा अभी फिक्स मैंने लिख दिया यहाँ पर, बट फिक्स नहीं रखते हैं, है ना? तो एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, अब दूसरी क्लास ये चाहती है कि मेरे क्लास को के वेरिएबल्स को, सीधा मतलब है इन क्लास में जो वेरिएबल है उनको कोई एक्सेस ना कर पाए. वो पॉसिबल कब होगा? वो जो डेवलपर है जो क्लास ए को डेवलप कर रहा है, दैट डेवलपर विल डिक्लेयर क्लास वेरिएबल्स लाइक प्राइवेट, राइट? सो दैट अदर डेवलपर can't be access these private variables. Okay, understand? Tell me यस please. सर. यस सर. That's good. यस तो सर. एडवांटेज क्या है इसके? एडवांटेज सिक्योरिटी का एडवांटेज, इसका कुछ नहीं है ना. ओके, एनी डाउट? हम कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट. ये बहुत बड़ा फीचर नहीं है, मतलब इसमें ज्यादा बड़ी प्रोग्रामिंग कुछ नहीं करनी, सिंपली समझने के लिए है, ठीक है ना? अभी आएंगी चीजें, धीरे धीरे पेशेंस रखिए. नंबर 2, पॉइंट 2 क्या है? इज व्हाट? एब्स्ट्रैक्शन. अभी मैंने बताया था हाइडिंग दी
अनवांटेड थिंग्स, गैर जरूरत वाली चीजों को हाइड कर दिया था, हाइडिंग दी अनवांटेड थिंग्स एंड रिक्वायर्ड थिंग्स आर विजिबल, राइट। हाइडिंग दी अननेसेसरी डेटा, कुछ भी बोल दो, ये तो डेफिनेशन भाई अपने अपने वर्ड होते हैं ना। नीड टू शो द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और रिवीलिंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड और राइट। सो एनी ऑफ ये फीचर भी रियल टाइम से उठाया गया है, नहीं बताओ भाई, रियल वर्ड से फीचर लिया गया एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction, this is completely from real word, completely from real word. How you can understand, suppose वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, कुछ भी कर लो, मैंने एग्जांपल अभी समझा भी दिए थे मस्त। एटीएम मशीन, भाई एटीएम मशीन का काम पैसा निकालने का है, तो पैसा निकालने का काम इंटरनली कैसे कर रही है, these things are visible or not, can you please tell me। एटीएम मशीन पैसा निकाल रही है, वो पैसा निकालने का काम आपको दिखाई दे रहा है, कैसे कर रही है। No, sir. बट वो थिंग्स क्या है, नेसेसरी थिंग्स है, अननेसेसरी थिंग्स है। अगर मैं अपने आप को यूजर समझूं, सपोज मैं कस्टमर हूँ बैंक का, और बैंक का एप्लीकेशन किसी ने बनाया होगा, तो क्या वो चीज़ जरूरतमंद है, जरूरी है कि वो एटीएम पे जो यूजर खड़ा है, जो पैसा निकालना है, उसको वो चीजें दिखाई दें कैसे पैसा निकल रहा है, राइट। अब दिस थिंग्स आर नेसेसरी और नॉट अननेसेसरी, क्योंकि वो कोड होगा, कोड के पीछे कुछ और तमाम मैकेनिज्म होगा। तो यूजर को उससे क्या मतलब है, यूजर का काम क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विजिबल होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आर विजिबल इन नॉट इन केस ऑफ एटीएम मशीन। Yes, sir. Yes, sir. Visible. ओके दैट्स गुड। तो फीचर समझ में आ गए सारे। एटीएम एग्जांपल है, ट्रेन इंजन और एनी अदर एग्जांपल यू कैन टेक। जस्ट अ मिनट। तुम्हारे जैसे हैं, इधर के बाल इधर है और उधर के बाल उधर गिरे रहे, मेरे साले ये बाल इधर आया है। हेलो, हाँ भाई, Yes. दो फीचर्स क्लियर हो गए। फीचर्स 2, देखो Yes, पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं, ये फीचर्स तुमको को लग रहा है बड़ी जल्दी जल्दी फिनिश हो रहे हैं, तो ये बहुत छोटे फीचर है, खेल यहाँ से चालू होगा। ये फीचर अकेला 1 हफ्ता चलेगा, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब तुमको लग रहा होगा ये 2 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो ये बहुत छोटे फीचर, इन फीचर की हेल्प से हम लोग ये वाले प्रोग्राम बनाएंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के। तो ये फीचर्स जो है लंबे चलेंगे, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, कैसे कैसे तरीके हैं ऑब्जेक्ट बनाने के, क्या क्या पॉसिबल थिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें कवर होंगी बाय यूजिंग, और लंबे लंबे कोड भी लिखे जाएंगे, राइट। सो ये तो छोटी छोटी चीजें, तो दैट विल कवर इन मोस्ट ऑफ द केस, ट्राई टू कवर इन टुडेज क्लास। ओके, थर्ड थिंग इज व्हाट, तीसरी चीज क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, देखो समझो इनकैप्सुलेशन क्या चीज है। अगर क्लास एक इनकैप्सुलेशन, एक्चुअली कोई कोड नहीं लिखा जाता इनकैप्सुलेशन का। आप सोचोगे क्या ये कोडिंग मैकेनिज्म है, सपोज करो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर वेरिएबल ए लिखा, मेथड मैंने m1 लिखा, तो ये क्लास के साथ इंटरनली कैसे बाइंड हो रहे हैं, ये क्लास के साथ, ये मेंबर्स क्लास के साथ इंटरनली कैसे बाइंड हो रहे हैं, दैट बाइंडिंग मैकेनिज्म इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन। बाइंडिंग मैकेनिज्म क्या कहलाएगा, दैट बाइंडिंग मैकेनिज्म, सपोज करो एक क्लास है मेरे पास, स्टूडेंट, राइट, ट्राई टू ऑब्जर्व क्लियरली। We have a class of name student. Inside the student class, we have a variable like private string student name.
student name, student, and private int student roll number. Right? Inside this class we have some public methods. We'll discuss about private, public, don't worry, okay? Public void set student detail, student name, string student name equal to student name is dot student name equal to student name. Don't get confused, ठीक है? This is pointing to, this means ये वाला, ये दोनों वेरिएबल सेम है ना, ये दोनों सेम है, इसलिए दिस पॉइंट करेगा इस वाले वेरिएबल को, तो यानी ये वाले वेरिएबल की वैल्यू इसमें कॉपी हो रही है. डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है? अगर दिस नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़ दो, आप ऐसे लिख दो, इसका नाम ओनली नेम दे दो, नेम, ठीक है? ओके. गेट स्टूडेंट नेम, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ना, स्टूडेंट का नाम अगर निकालना है मुझे, सिंपल गेट स्टूडेंट नेम, गेट स्टूडेंट, ट्राई टू ऑब्जर्व क्लियर. ये सिंपल मेथड बन रहे हैं, कुछ भी कमाल का काम नहीं हो रहा है. सब सोचो क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना? सिमिलर वे में इसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, सेट स्टूडेंट रोल नंबर, सेट स्टूडेंट रोल नंबर. Any doubt for this program? रोल नंबर क्या लिखा जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत समझने में? सिंपल, मैंने दो वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल, वेरिएबल कैसे है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑफ विच क्लास, स्टूडेंट क्लास, सिंपल. और मैंने सेटर गेटर बना दिए, सेट स्टूडेंट नेम, गेट स्टूडेंट नेम, सेट स्टूडेंट रोल नंबर, गेट स्टूडेंट रोल नंबर. ओके, चारों की चारों मेथड कैसे बने, चारों के चारों मेथड नॉन स्टैटिक, वेरी सिंपल, कुछ ज्यादा पूछा नहीं इसमें, कोई कैलकुलेशन में नहीं हो रही, सिंपल. बस क्या कर रहे हैं हम लोग, मेथड क्रिएट कर दिए हैं. 4 मेथड बन गए. एक मेथड जो है स्टूडेंट का नाम सेट करने के लिए, दूसरा स्टूडेंट का रोल नंबर सेट करने के लिए, तीसरा जो है स्टूडेंट का नाम निकालने के लिए, और चौथा जो है वो स्टूडेंट का रोल नंबर निकालने के लिए. राइट? सो ये चारों जो भी क्लास के अंदर मेंबर है, मेंबर मतलब वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, क्लास के अंदर जो भी पॉसिबल मेंबर्स हैं, वो मेंबर इस क्लास के साथ कैसे बाइंड हो रहे हैं, वो मेंबर्स इस क्लास के साथ कैसे बाइंड हो रहे हैं, दैट इंटरनल मैकेनिज्म. ये कोई इंटरनली मैकेनिज्म चल रहा होगा ना, इसके थ्रू, जैसे आपने यहाँ लिख दिया, ये बाइंड कैसे होगा इस क्लास के साथ, दैट बाइंडिंग मैकेनिज्म, दैट दिस इंटरनल मैकेनिज्म इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन. तो रैपिंग ऑफ द डेटा मेंबर, रैपिंग ऑफ द डेटा, ये रैपिंग मींस रैप कर देना, नहीं, ठीक है ना? तो रैपिंग ऑफ द डेटा मेंबर, इन डेटा मेंबर्स को क्लास के साथ ये कैसे रैप हो रहे हैं, क्लास के साथ कैसे बंद हो रहे हैं, दैट रैपिंग मैकेनिज्म इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन. समझ में आया? दैट रैपिंग मैकेनिज्म इज व्हाट, इनकैप्सुलेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोई क्लास है, क्लास के अंदर वेरिएबल लेके आपने मेथड लिखा, कुछ भी लिख दिया, वो क्लास के सारे मेंबर्स उस क्लास के नाम से कैसे एसोसिएट हो रहे हैं, क्लास के साथ कैसे जुड़ रहे हैं वो, दिस मैकेनिज्म इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन. रैपिंग ऑफ द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, दैट सिंगल यूनिट इज व्हाट, क्लास. वो सिंगल यूनिट क्या है, ये रैपिंग मींस बहुत सारे डेटा को रैप कर दिया इनटू अ सिंगल यूनिट, इनटू अ single unit. That single unit is nothing but a class, and complete mechanism, complete engineering is nothing but encapsulation. Understand? Yes, sir. फिर से दोबारा से समझो. क्लास के अंदर जो भी आपने वेरिएबल लिखे, मेथड लिखे, मैंने तो लॉजिकल थोड़ा कोड लिखा है, ऐसा नहीं कुछ भी कोड हो सकता है क्लास के अंदर, स्टैटिक मेंबर, प्राइवेट मेंबर, जो भी जैसे भी लिखने,
क्लास के अंदर जो मेंबर्स बन रहे हैं वो उस क्लास के साथ कैसे रैप हो रहे हैं, राइट? दीज मेंबर्स आर हाउ आर रैप्ड विद द क्लास नेम। तो दिस थिंग्स इज नथिंग बट क्या कहलाएगा, ये इनकैप्सुलेशन कहलाएगा, ठीक है। रैपिंग ऑफ द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, that single unit is nothing but a class and complete mechanism is known as, the complete mechanism is nothing but encapsulation, encapsulation। नेक्स्ट लाइन में और समझिए इनकैप्सुलेशन क्या होता है ना। इनकैप्सुलेशन मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हाइडिंग। एक्चुअली में क्या होता है, जिसको हम रियल टाइम में बोलेंगे वैसे इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मेथड के थ्रू अचीव करेंगे हम लोग। एब्स्ट्रैक्शन किसके थ्रू अचीव करेंगे, मेथड के थ्रू। डेटा हाइडिंग प्राइवेट वेरिएबल के थ्रू, राइट। तो एक्चुअली में हम एनकैप्सुलेशन बोलेंगे जहां जहां ये दोनों चीजें लगी हुई, यानी कि प्राइवेट वेरिएबल, पब्लिक मेथड्स। तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि प्राइवेट वेरिएबल क्या हो गए, प्राइवेट वेरिएबल डेटा हाइडिंग, और ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एनकैप्सुलेशन। समझ में आया या नहीं, बोलिए भाई, एनी डाउट? आई एम कॉपिंग द पेज। तो यहाँ पर अगर आप समझना, इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट कि दिस प्राइवेट वेरिएबल कम्स अंडर दी डेटा हाइडिंग, राइट, डेटा हाइडिंग, ठीक है ना। और दिस ऑल, इसको ऊपर लिखते हैं, कमेंट लाइन को ऑलवेज राइट इन द टॉप ऑफ द वेरिएबल एंड पब्लिक मेथड्स। Not public, all kind of methods, all kind of methods comes under the abstraction। तो रियल टाइम में कैसे समझोगे, सपोज करो ये कोड लिखा हुआ है, डिस्प्ले यूजर नेम। देखो एज ए डेवलपर आप सोचोगे ये एब्स्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो समझ में नहीं आएगा, एज ए यूजर समझना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आप अभी जैसे एज ए डेवलपर समझना चाहते हो तो ऐसे ऐसे कोड की बात करो जो कि सन माइक्रो सिस्टम ने लिखा है। सपोज दैट println मेथड, सपोज दैट विच मेथड, println। तो यू डोंट नो अबाउट द बॉडी ऑफ println, राइट। अगर आप अपना ही कोड लिखोगे तो कहोगे ये कैसा एब्स्ट्रैक्शन हो, तो वो चीज थोड़ा सा आपको लगेगा गलत पढ़ लिया हमने, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे जो चीज आपको नहीं दिख रही है, जैसे println की बॉडी है, वो आपको दिखती है, नहीं दिखती है, that is what abstraction, but उसका required things are दिखती हैं। required things क्या है, println का काम है प्रिंट कर देना, तो वो प्रिंट कर देता है। हम लिखते हैं println हेलो इंडिया, तो हेलो इंडिया भी प्रिंट, ओके। इन दोनों चीजों का डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन इज व्हाट, कंप्लीट क्या कहलाएगा, कंप्लीट इनकैप्सुलेशन कहलाएगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. एनी इश्यूज? अच्छा, ऐसा नहीं है कि यही हो तो ही जो जाके कि प्राइवेट वेरिएबल हो और किसी तरह के मेथड हो। इस केस में क्या है, एक डेफिनेशन, एक और टर्म है टाइटली कपल्ड, टाइटली इनकैप्सुलेशन। टाइटली इनकैप्सुलेशन कब कहलाएगा, जब when all variable of class declared as a private plus
just a minute. Okay. All variable of the class declared as a private and all methods of declared as a public. Means that class is declared as a, अगर उस क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल, सारे वेरिएबल प्राइवेट है, सारे मेथड पब्लिक है, तो उस क्लास को हम क्या बोलेंगे? दैट क्लास इज कंप्लीटली और टाइटली इनकैप्सुलेटेड. कैन यू प्लीज टेल मी, ये लाइन समझ में आ गया? The Yes, sir. class is only said to be tightly coupled, so tightly encapsulated. Only and only all the variable of that class declared as a private and all the methods of that class declared as a public. Then only we can say that that class is completely or tightly encapsulated. So can you please tell me this class is tightly encapsulated or not? Yes, sir. Tightly encapsulated. Okay, just one thing. Can you please tell me this class is completely or tightly encapsulated or not if I'm writing private in name and RNO? Can you please tell me this is completely or tightly encapsulated or not? Sir, method. No, sir. Methods are missing. Sir, method are क्योंकि missing. हर फील्ड के लिए मेथड बनाना पड़ता है ना, जैसे सेट रोल नंबर और गेट रोल नंबर. दैट इज दो पब्लिक मेथड्स नहीं है. दैट इज व्हाई दिस क्लास इज नॉट टाइटली, this class is not tightly encapsulated. सर ये क्या encapsulated हो सकती है? Encapsulation तो है. Encapsulation means wrapping of the data member into a class, into a single unit. That single unit is known as encapsulation. So that is single unit is known as class. तो रैपिंग ऑफ द डेटा, ये इनकैप्सुलेशन तो हो रहा है, लेकिन टाइटली इनकैप्सुलेशन नहीं हो रहा है. क्योंकि स्ट्रांगली इनकैप्सुलेशन नहीं है, बट इनकैप्सुलेशन है. इनकैप्सुलेशन में सिंपल ये होता है, तरीके की कैप्सूल समझो. कैप्सूल में क्या भर दिया? दवाई भर दी. ये वो दवाई है, ये वो मेडिसिन है जो कैप्सूल के अंदर भरी हुई. वो कैप्सूल क्या है? वो कैप्सूल क्लास है, राइट. वो रैप करते थे ना, तो मेडिसिन को रैप करते हैं किसके अंदर? एक पॉलिथीन, छोटी सी पॉलिथीन बनाते हैं, वो कैप्सूल के टाइप की, राइट. तो सेम वे आप समझिए कि उस आपके मेडिसिन को एक कैप्सूल में भर दिया गया, वो कैप्सूल का नाम है क्लास, और जो दवाई है वो आपके वेरिएबल है और मेथड्स. तो इनकैप्सुलेशन कोई स्पेशल कोड नहीं, ये कोड हम लिखते चले आ रहे हैं. कोई ऐसा नहीं है पहली बार इस टाइप का कोड लिखा जा रहा है. मेथड वेरिएबल के कोड लिखे गए ना, तो बस ये एक मैकेनिज्म है. एक्चुअली क्या ये मैकेनिज्म है? क्या मैकेनिज्म है कि आपके डेटा को, आपके मेथड्स को, आपके वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर जो भी क्लास के अंदर बंद हैं, वो सारे मेंबर क्लास के एक डब्बे में कैसे बंद हो जाते हैं इंटरनली. दैट इंटरनल मैकेनिज्म इज व्हाट? इनकैप्सुलेशन. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Any issues Yes, to sir. No, understand? ये फंडामेंटल फीचर्स हैं. तो आपको बहुत मतलब एकदम कोई भी पूछे तो आप एकदम बता दो कि इनकैप्सुलेशन क्या है, टाइटली Yes, sir. इनकैप्सुलेशन क्या है, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज समवेयर most of the person use data abstraction or only abstraction. एक ही बात है, ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्शन. तो आज हमने 3 फीचर्स कवर किए: डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन and encapsulation and title encapsulation. Any doubt till now? We'll discuss most of the feature one by one in the coming classes. Okay. So any doubt? This is completely unit 2. और काफी सारा पेशेंस रखना पड़ेगा. यहाँ से चीजें स्टार्ट होंगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना. धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, तो टाइम भी है अभी हमारे पास. So why do we need use class and what are the purpose? Without class we can't perform some operation. Why? So this kind of thing will cover. What is object?
ऑब्जेक्ट क्या, अगर आप अब तक आपसे पूछा जाए आज तक के लिए, आज तक के नॉलेज के हिसाब से, तो आप ऑब्जेक्ट क्या बताओगे? ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ड, ऑब्जेक्ट हर चीज रियल वर्ड से उठाई गई ना, तो रियल वर्ड में बताओ ऑब्जेक्ट क्या चीज है। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, प्लीज टेल मी what did you understand about the term of object? I'm not talking about programming object. बहुत सिंपल है भाई, कोई भी नहीं बता पा रहा क्लास में, ऐसा कैसे? सर कोई चीज मतलब जिसको इंडिकेट कर रहे हो, या जिसके बारे में काम कर रहे हो। राइट, सर डिस्ट्रीब्यूटर सर। हाँ। चलिए, अब मैं अगर बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म में बोलूं तो दुनिया की हर वो चीज जिसको छुआ और देखा जा सकता है, राइट? दुनिया की Yes, sir. हर वो चीज जिसको, दैट चीज टचेबल एज वेल विजिबल एंटिटी, दुनिया की हर वो चीज जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, दैट थिंग्स आर नथिंग बट ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड। ऐसा नहीं, दोनों ही चीजें पॉसिबल होना चाहिए, देखना प्लस टचेबल, मतलब विजिबल एज वेल एज टचेबल एंटिटी होना चाहिए, then only we can say Yes, that sir. in the real time this things about object, right? अब जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी अपनी एक स्टेट होगी, स्टेट Yes, sir. मीन व्हाट, यही सेम चीजें प्रोग्रामिंग में आएंगी। स्टेट का Liquid मतलब है। है अब उस ऑब्जेक्ट सपोज करो वो ऑब्जेक्ट क्या है, फैन। सपोज वो ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सन। सपोज वो ऑब्जेक्ट क्या है, कस्टमर। सपोज वो ऑब्जेक्ट क्या है, लैपटॉप, राइट? These things are touchable as well visible entity or not? Yes, sir. So what is the meaning of a state of an object? State means tell something about that object, उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताना, like name of the laptop and like उस लैपटॉप में जो है रैम कितनी है, उस लैपटॉप की हार्ड ड्राइव कितनी है, राइट? उसमें मदरबोर्ड कौन सा पड़ा है। these are the state of an object, like person name, person mobile number, person address, these are the state। तो पूरा खेल स्टेट और ऑब्जेक्ट पे चलेगा प्रोग्रामेटिकली। इस समझ में आया प्रोग्राम नॉर्मली स्टेट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट Yes, sir. की स्टेट क्या होती है? ऑब्जेक्ट स्टेट में टेल समथिंग अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस ऑब्जेक्ट की डिटेल जो है वो क्या कहलाएगी, वो उसकी स्टेट कहलाएगी। उसकी स्टेट, जैसे पर्सन की स्टेट क्या है, पर्सन का नेम, पर्सन का एड्रेस, पर्सन का मोबाइल नंबर, पर्सन की क्वालिफिकेशन, लाइक दैट, दीज आर द स्टेट ऑफ दैट पर्सन, राइट? तो अब इस केस में मुझे जरा ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल you are the student, right? So you are the student, what is your state? Student name, Sir, student my code, name और roll number या ID भी हो सकती roll है। number, ID, course, like that, right? तो स्टेट स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगी या सारे स्टूडेंट की सेम रहेगी? सर वेरी करेगी। ओके, जब वेरी करेगी इसका मतलब क्या हुआ कि आप आपसे कहें कि एक वेरिएबल बनाओ और वो वेरिएबल अलग अलग स्टूडेंट की डिटेल रख ले अपने पास। सपोज करो एक वेरिएबल है स्टूडेंट नेम, सपोज करो वो वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट नेम, सपोज करो, ठीक है ना? तो वो स्टूडेंट नेम अब तक की नॉलेज के हिसाब से हम एक स्टूडेंट की क्लास बना रहे हैं और उस स्टूडेंट की क्लास में मैंने स्टूडेंट नेम नाम का वेरिएबल बनाया, तो वह वेरिएबल लॉजिकली हमको कैसा रखना होगा, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? अब यहाँ पहुंचेंगे, मैं तो बस जनरली क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना? संकल्प, पहले ये बताओ, ये स्टूडेंट की नेम जो है, जो ये क्या एक बार यूज होगा या स्टैटिक रखना होगा, हाँ? नॉन स्टैटिक रखना होगा। बताइए संकल्प। सर मीन एक ही बार होगा सर। नहीं, स्टूडेंट नेम ना एक बार होगा, राइट? बट दैट
contains multiple information, multiple student information और single student information, यानी सिंगल स्टूडेंट का नेम स्टोर होगा या मल्टीपल का स्टोर कराओगे? सर सिंगल। सर मल्टीपल क्या का। आपके बीसीए में सिंगल स्टूडेंट पढ़ता है? नो सर, मल्टीपल स्टूडेंट। How can we store a multiple student name in a single variable? Try to answer, no issue. तो नॉन स्टैटिक करना पड़ेगा। नॉन स्टैटिक करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई टू आंसर संकल्प, थिंक लॉजिकली। एक चीज तो मैं बता ही चुका था बहुत पहले कि स्टैटिक मेंबर जो है वो स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, चलो मेथड तो सब एक एक बार ही आते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल एक बार मेमोरी में पहुंचता है, और स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं उतनी बार मेमोरी में पहुंचता है, ठीक है ना। यस। तो अब तुमसे मैं कहूँ कि ये स्टैटिक होगा या नॉन स्टैटिक होगा, तो अब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, स्टूडेंट है जो ऑब्जेक्ट ना, यस सर। स्टूडेंट इज दी ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का आप कितनी बार पहुंचाओगे? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, यस सर। राइट। स्टूडेंट की प्रॉपर्टी बात इज लाइक स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम को हम कितनी बार मेमोरी में पहुंचाने की कोशिश करेंगे? जितने जितने नंबर नंबर ऑफ ऑफ स्टूडेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, यानी कि मल्टीपल टाइम, यानी कि मल्टीपल टाइम वी नीड टू स्टोर दैट वेरिएबल इनटू मेमोरी। अगर आप एक ही बार स्टोर करोगे और आपने पहले लिखा इस स्टूडेंट नेम इक्वल टू सपोज यासिर, फिर आपने स्टूडेंट नेम इक्वल टू लिख दिया संकल्प, फिर आपने स्टूडेंट नेम इक्वल टू लिख दिया साक्षी, तो लास्ट में क्या होगा? क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, तो डेट मेमोरी में क्या होगा? 20 स्टूडेंट का नाम जो है वो हो जाएगा जो आपने सबसे लास्ट में स्टोर कराया था। सबसे लास्ट में आपने सपोज किया स्टोर साक्षी, तो 20 के 20 स्टूडेंट का नाम साक्षी कहलाएगा। ये सही प्रोग्रामिंग होगी? नो सर। दैट इज व्हाई यू हैव टू मेंशन, मतलब अब आप समझिए ऑब्जेक्ट क्या है और स्टेट क्या है। सो ऑलवेज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए नॉन स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड द क्लास, राइट। यस सर। We'll discuss later. These are the common things we are discussing here. Okay, no issues. समझ में आया ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेट क्या है? यस सर। We'll discuss about state as well and state. State and behavior. Object behavior भी होता है, and behavior. Behavior. Okay. And behavior is also discussed in the coming classes. Okay, so अभी तक कुछ डाउट इतना समझने में इनकैप्सुलेशन तक? नो सर। Please tell me what is data hiding, what is abstraction, what is encapsulation. Okay, so that's it for today's class. I'm taking your attendance first.